Welcome to my dear online students. This is another class for class 11th chemistry. You know that in this class we are going to discuss how to calculate the lattice energy. How we can calculate lattice enthalpy. That is our topic today. So in this class we are going to discuss Bohren-Haber's process because Bohren-Haber's process is a method by which we can calculate indirectly lattice energy or lattice enthalpy, because there is no any kind of direct method by which we can calculate lattice energy. And you know that what is lattice energy? Lattice energy is the energy released when 1 mole of any ionic compound or any ionic crystal is formed from its constituent gaseous ions. जब भी उसके सपोज अगर हमें NaCl का 1 मोल बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स है सपोज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उनको किस फॉर्म से उनको बनाना है, गैसियस स्टेट से उनको तैयार करना है। तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करने के लिए, ताकि उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में क्या तब्दील करेंगे, उसको एनर्जी कितनी एक्वायर होगी, कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी एनर्जी की, तो वो क्या कहलाती है, उसकी लेटिस एनर्जी। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि क्लास 11th केमिस्ट्री दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी भी आप इसको बोल सकते हो। और lattice enthalpy it is denoted by U, or simply we can represent it by Le in short form. Our real representation is U, and lattice energy can be represented Le or lattice enthalpy Le. तो मैंने क्या बताया, शाबाश, मैंने आपको बताया था lattice enthalpy किसी भी आयोनिक सॉलिड के लिए हम डिफाइन करते हैं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी ionic solid, any ionic compound is amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is broken into its constituent gaseous ions, or when 1 mole of any ionic compound is separated into its constituent ions, and the energy released, the energy required at that time is called lattice energy. Now how we can calculate this lattice energy, and we have already discussed what are the various factors which affect the lattice energy. Then the various factors which affect the lattice energy is the size of the cations and anions. Smaller is the size of cation and anion, higher is the lattice energy. And the second factor is charge on the cations and anions. More is the charge, more is the lattice energy. And third one is the coordination number. More is the coordination number, more is the lattice energy. And this coordination number plays mainly important role in the compounds of group second elements, that is alkaline earth metals. There you have to see where the compound having more coordination number is having more lattice energy. And also I have told you that in case of size and charge, we are giving dominating role to the charge. Charge plays an important role in determining the lattice energy. Now how we can calculate the lattice energy, that is the main topic here that we are going to discuss. How to calculate lattice energy, we are going to calculate it. There is no direct method. There is no direct method to calculate, shabash, to calculate lattice energy. कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनडायरेक्ट मेथड है, वो किसने दिया, वो बॉर्न और हैबर ने दिया, और उसको हम बोलते हैं बॉर्न-हैबर प्रोसेस। इसी प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, शाबाश, बॉर्न-हैबर साइकिल, एक प्रोसेस या साइकिल बोल सकते हो। इस प्रोसेस से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मसला है, इस बॉर्न-हैबर साइकिल को समझने के लिए हमें एक लॉ भी पढ़ना होता है यहाँ पे, हेसिस लॉ। ये क्या बताता है, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो सिंगल स्टेप में होती हो चाहे वो मल्टी स्टेप में होती हो, जो उसमें एनर्जी चेंज आती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम।
चाहे आप कोई भी पाथ उसके लिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कोई भी पाथ आप कंसिडर कीजिए, हर पाथ से जो एनर्जी चेंज आएगी वो सेम आएगी। सपोज अगर आपको ए से क्या हासिल करना है, बी, चाहे आप ए से पहले सी की तरफ जाओ, फिर सी से क्या डी की तरफ जाओ, फिर डी से क्या बना बी, ए से सी बनाया, सी से डी बनाया, फिर डी से क्या बनाया बी। जो यहाँ से जाने तक इस पाथ से जाने के लिए जितनी भी एनर्जी चेंज आएगी वो, और जो एनर्जी चेंज आपको डायरेक्ट आएगी, यहाँ से आने वाले एनर्जी चेंज और यहाँ से आने वाले एनर्जी चेंज दोनों क्या होंगे, सेम। ये कौन बताता है हमें, शाबाश, हेसिस लॉ हमें बताता है, और वो मैंने आपको सेंड करके भेजा है कि हेसिस लॉ क्या बताता है। ये बताता है द नेट एंथैल्पी चेंज, द नेट एनर्जी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और एनी प्रोसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट whether the reaction takes place in one step or it takes place in multi step। जो नेट एंथैल्पी चेंज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो क्या रहती है, सेम। ये है हेसिस लॉ। मगर इस बार्न हैबर प्रोसेस से या बार्न हैबर साइकिल से जो हमें लेट्स एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसके लिए हमें और सब प्रोसेसेस क्या स्टडी करनी पड़ती है। सब प्रोसेसेस कौन आती है इसमें आता है, शाबाश, हमें सब्लिमेशन को देखना होता है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को देखना होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये हमें देखना होता है। और क्या देखना होता है हमें, शाबाश, लैटिस एनर्जी हमें देखनी होती है जिसको हम यू भी बोलते हैं। और क्या आता है इसमें, शाबाश। और फाइनली इन सभी प्रोसेसेस का सम एक एनर्जी चेंज के रूप में आता है, जो हेसिस लॉ में हम नेट चेंज बताते हैं, वो होती है डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज में हम क्या बोलते हैं, सॉरी, लैटिस एनर्जी में और हीट ऑफ फॉर्मेशन में बहुत डिफरेंस है। हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं वो एनर्जी जो हमें लगती है या बाहर निकलती है जब हमें एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयन गैसियस आयन से बनाना होता है। और जब हमें एक मोल ऑफ कंपाउंड बनाना होगा और उस एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए उसके प्योर एलिमेंट से बनाने से के दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सपोज अगर हम यहाँ पे बताएंगे Na सॉलिड प्लस क्लोरीन 1/2 ऑफ क्लोरीन गैस, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaCl। तो NaCl प्योर फॉर्म है और क्लोरीन भी प्योर फॉर्म है। इस हमने क्या बनाया, 1 मोल ऑफ NaCl। इस 1 मोल ऑफ NaCl एक प्योर कंपाउंड है, इसको अपने प्योर एलिमेंट से हासिल करने के दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी वही डेल्टा एच फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन में हम प्योर एलिमेंट की बात करते हैं या स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं। हमें एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड तैयार करते हैं, यहाँ से एक आयनिक कंपाउंड, सॉरी, एक सॉलिड कंपाउंड या एक 1 मोल कंपाउंड तैयार करते हैं उसके प्योर एलिमेंट से। और वहाँ पे हम बोलते हैं हम 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड तैयार करते हैं उसके गैसियस आयन से तैयार करते हैं। ये है डिफरेंस। मगर ओवरऑल आपको समझना है डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होती है। ये इन सभी सब प्रोसेस का क्या होता है, ये सम होता है। अब सपोज हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, लेटेस्ट एनर्जी। वो हम कैसे करते हैं, बॉर्न हैबर्स प्रोसेस से। वो अब आपको देखना है क्योंकि मैंने बताया इसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे Na सॉलिड से, शाबाश, और क्लोरीन गैस से क्या बनाना है, NaCl। NaCl सॉलिड मुझे तैयार करना है, कितना, 1 मोल। तो इसके दौरान क्या निकलती है, डेल्टा एच एफ। दैट मीन्स ये वो एनर्जी होती है जो इस 1 मोल NaCl को फॉर्म करने के दौरान बाहर निकलती है। और ये डेल्टा एच एफ मैंने बताया, इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, हमने NaCl तैयार किया फ्रॉम इट इज प्योर एलिमेंट्स, फ्रॉम इट इज एलिमेंट्स विच आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेटस। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या होगा, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमें हासिल करना है, तो इसको हासिल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं।
आप इस डेल्टा एच एफ को प्लस डेल्टा एच एफ के फॉर्म में राइट साइड में भी लिख सकते हो, आप इसको एरो पे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मगर आपको पता है NaCl अगर हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल करना है तो कैसे इस तक हम और एक तरीके से पहुंच सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्टली हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमें पहले क्या करना है, Na सॉलिड को सब्लिमेशन करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। दैट मीन्स हमें एनर्जी सप्लाई करनी है इसको, ताकि ये सॉलिड से डायरेक्टली किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में। क्योंकि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na गैस। फिर यहाँ से हम क्या देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हमें गैसियस स्टेट से क्या निकाल, गैसियस एटम से क्या निकालनी होती है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए जो हमें एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आप डेल्टा एच IE भी बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव गैस और क्या निकलेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका। अब क्लोरीन का, क्लोरीन क्योंकि Cl2 फॉर्म में होता है, Cl और Cl, इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसको एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए, इसके लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। क्योंकि आधा ही मॉलिक्यूल है, आधे मॉलिक्यूल को ही हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आधी ही लगेगी।